So, dear students, we are going to discuss the next portion, that is hydrolysis, the concept of hydrolysis and hydrolysis of different types of salts. Hydrolysis can be defined as the reaction of salt with water producing acidity or basicity, or both. So the salt, general formula of salt is B, which on treatment with water or reaction with water producing acidity, we can use acid as well as base. So the salt of hydrolysis producing acidity or basicity are called hydrolysis. So depending upon the type of salt, the nature of hydrolysis is different. So there are 4 types of salts. First is the salt of strong acid and strong base. For example, sodium chloride, potassium nitrate. So these are the salts of strong acids and strong bases. Second is salt of strong acid and weak base. For example, salt of strong acid and weak base, ammonium chloride. Ammonium chloride is the salt of strong acid and weak base. Third is salt of weak acid and strong base. For example, CH3CO comes from weak acid and sodium comes from strong base. So sodium acetate is the salt of weak acid and strong base. Fourth is salt of weak acid and weak base. For example, CH3CONH4, ammonium acetate. So ammonium acetate is the salt of weak acid and weak base. So these are the types of salts. So as far as hydrolysis is concerned, the hydrolysis of different kind of salt producing either acidity, more basicity, or neutral in nature, depending upon the hydrolysis of salt. For example, let us discuss hydrolysis of first salt of strong acid and strong base. Hydrolysis of salt of strong acid and strong base. For example, sodium chloride. Sodium chloride on hydrolysis. Before hydrolysis, one thing I would like to tell you. In hydrolysis process, water itself ionizes as hydronium ion, that is nothing but H plus I plus OH minus I. So
it gives cations and anions. So these cations and anions of this H plus and OH minus ion or hydrogen and OH minus ion can react with the cations and anions of the salt B plus and A minus ion. The tendency of reacting these cations and anions with these ions for the different types of salts, for example sodium chloride, which on hydrolysis, we can use auxiliary water also, then that will produce NaOH plus HCl, that is strong acid and strong base and strong acid. Means it produces equal number of or equal concentration of acids and bases, both are strong, and that's why it contains OH minus as well as H plus ion. It takes equal concentration of H plus and OH minus and it has it both OH minus and H plus ion, and that's why the solution is neutral in nature. The solution becomes neutral in nature because it is a salt of strong acid and strong base. Similarly, if you take salt of strong acid and weak base, salt of strong acid and weak base, for example, हमने example लिया है already, that is ammonium chloride, which on hydrolysis it gives NH4OH plus HCl. Means H plus ion react with this Cl and OH minus and react with NH4 forming weak base and strong acid. As it contains strong acid, there will be more number of H positive ion and hence the solution is acidic in nature. Solution is acidic in nature. So in this case, the Ka, dissociation constant of acid, is greater than dissociation constant of base, and hence the solution is acidic in nature. But in case of this sodium chloride salt, the K will be equal to Kb, and that's why the solution becomes neutral because it contains equal number of H positive and OH negative ion. Third, salt of weak acid and strong base. What is the example? That is sodium acetate, which on hydrolysis it gives CH3COH plus NaOH. So H plus ion react with this acetate ion, OH minus ion react with Na forming NaOH. So it gives a weak acid and strong base. As it contains strong base, so there will be more number of OH minus ion. The solution will be basic. Solution will be basic, and hence here Ka is less than Kb. Because why it is Kb is more? Because it contains more number of OH minus ion. So dissociation constant of base is more, and hence the solution will be basic in nature. But as far as the salt of weak acid and weak base is concerned, what is the example? CH3COONH4, which on hydrolysis it gives a weak acid as well as weak base. So this is weak acid and weak base. Means it contains H positive and OH negative in little proportion, and that's why here it is found to be K is equal to Kb. If K is equal to Kb, dissociation constant of acid as well as base is equal, so that's therefore the solution will be neutral.
So also in case of this NaCl and KNO3 also this case is similar. So K will be equal to Kb. So this is all regarding hydrolysis. So इसमें बहुत सारे डेरिवेशंस थे, लेकिन ये डेरिवेशंस को ओमिट कर दिया है, आपको इस सारे में डेरिवेशंस नहीं है. So the next part we are going to discuss the buffer solution. What is meant by buffer solution? Buffer solution. What is buffer solution? So the solution, buffer solution is a solution. It is such a solution whose pH always remains constant. यानी एक ऐसा solution है solution whose pH always remains constant. And which does not alter or change by the addition of small amount of strong acid or strong base or on dilution or on keeping for long time. यानी एक ऐसा सॉल्यूशन है जिसका पीएच हमेशा कांस्टेंट होता है, और ये पीएच अगर हम स्मॉल अमाउंट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस ऐड करते हैं फिर भी चेंज नहीं होता है, या फिर उसका डाइल्यूशन करते हैं फिर भी चेंज नहीं होता है, या फिर हम लॉन्ग टाइम के लिए उसको प्रिजर्व करते हैं फिर भी इसका चेंज नहीं होता. दैट इज कॉल्ड बफर सॉल्यूशन. और ये कितने प्रकार के एंड हाउ इट इज प्रिपेयर्ड? टाइप्स ऑफ बफर सॉल्यूशन. फर्स्ट टाइप इज एसिडिक बफर. एसिडिक बफर का पीएच जो होता है दैट इज लेस देन 7 and it can be prepared by mixing weak acid and its salt of strong base. यानी weak acid for example acetic acid, it's उसी के strong base का salt रहेगा CH3CONe. Means acidic buffer solution can be prepared by mixing acetic acid and sodium acetate whose pH is less than 7. Less than 7, that is acidic buffer. Second is basic buffer. Basic buffer has pH greater than 7. 7 के ऊपर रहेगा, alkaline रहेगा. For example, how it is prepared? Basic buffer solution can be prepared by mixing weak base, that is ammonium hydroxide and its salt of strong acid. यानी यहाँ पर हम लेंगे वीक बेस, कोई भी ले लो वीक बेस, और उसी वीक बेस का स्ट्रॉन्ग एसिड का साल्ट. वीक बेस है फॉर एग्जांपल अमोनियम हाइड्रोक्साइड और उसी का साल्ट है अमोनियम क्लोराइड. तो ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड अमोनियम क्लोराइड अगर मिक्स करते हैं तो कौन सा बफर बनता है? बेसिक बफर. थर्ड इज न्यूट्रल बफर. इसी को बोलते हैं सिंगल साल्ट बफर.
सिंगल साल्ट या न्यूट्रल बफर का जो पीएच है दैट इज ओनली इक्वल 7, ये 7 होता है, न्यूट्रल होता है। एंड दिस बफर सॉल्यूशन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग वीक एसिड and weak base. For example, weak acid, acetic acid, and weak base NH4OH. So that we can also dissolve ammonium acetate in water. That's why it's called single salt buffer. इसलिए इसको बोलते हैं सिंगल साल्ट बफर। ये हो गया टाइप्स ऑफ बफर और उसकी प्रिपरेशन और उसके पीएच लेवल कितना होता है। अब सेकंड थिंग ये है कि अगर हमें इसमें एक जो नया टॉपिक उन्होंने ऐड किया है वो है इसका पीएच कैसे फाइंड आउट करते हैं एंड हाउ टू फाइंड आउट पीएच। फॉर एग्जांपल एसिडिक बफर का पीएच अगर हमको फाइंड आउट करना है देन you can take here pKa plus log to the base 10 of concentration of salt upon concentration of acid। यानी हम ये फार्मूला अगर यूज़ करते हैं तो एसिडिक बफर पीएच हम कैलकुलेट कर सकते हैं। सेकंड थिंग, अब बेसिक बफर का पीएच कैलकुलेट करना है मतलब हम पीएच नथिंग बट हम यहाँ पे पीओएच फाइंड आउट करेंगे क्योंकि बेसिक है वो। तो पीओएच विल बी इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा पीकेबी प्लस लॉग टू द बेस 10 ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बेस। तो अगर ये फार्मूला यूज करते हैं तो हम बेसिक बफर का पीओएच फाइंड कर सकते हैं और पीओएच पर से उसका पीएच भी निकलता है। pH will be equal to 14 minus pH because pH plus pH is equal to 14 है। अब सेकंड इसमें दूसरा सवाल ये है कि what is pKa? So pKa can be calculated by using this formula minus log K। तो pKa हम कैलकुलेट कर सकते हैं, हमने आपको K दिया रहेगा उस पर सब pKa कैलकुलेट कर सकते हैं माइनस लॉग K इज इक्वल टू pKa। तो यहाँ पर pKb will be equal to minus log Kb। इस तरह से ये फार्मूला यूज कर सकते हैं। सो सेकंड थिंग आई वांट टू नो the students remember this thing that pKa plus pKb will be equal to pKw। Okay, so the buffer pH of the buffer solution can be calculated by using this formula। ये हम किसी भी बेसिक न्यूमेरिकल भी देते हैं। After the before taking numerical टॉपिक इसमें कंसिडर किया है कि बफर एक्शन मैकेनिज्म। हमने बार कहा है कि डेफिनेशन में कि सब पीएच चेंज नहीं होता है, तो क्यों नहीं होता है चेंज, वाई द पीएच ऑफ बफर सॉल्यूशन डज नॉट चेंज। हम थोड़ा सा इसको पहले डिस्कस करते हैं कि इसका पीएच चेंज क्यों नहीं होता है। दैट इज कॉल्ड बफर एक्शन मैकेनिज्म। दैट इज कॉल्ड बफर एक्शन मैकेनिज्म। तो इसमें बफर एक्शन मैकेनिज्म में हमें ये बताना है कि ये बफर सॉल्यूशन का पीएच चेंज क्यों नहीं होता। सो एज यू नो बफर एक्शन मैकेनिज्म आप सबसे पहले हम देखेंगे एसिडिक बफर। तो एसिडिक बफर में एसिडिक बफर कैसे बनाते हैं? बाय टेकिंग वीक एसिड एंड इट्स अ साल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस। तो वीक एसिड का डिसोसिएशन बहुत ही कम होता है, दैट इज CH3CO माइनस प्लस H पॉजिटिव आयन, इस तरह से होता है, इसलिए रिवर्सिबल एरर भी है।
साल्ट का आयनाइजेशन ऑलमोस्ट कंप्लीट होता है, मैक्सिमम प्रोपोर्शन होता है। इसका मतलब ये कि एसिडिक प्रॉपर सॉल्यूशन में ये अनडिसोसिएट मॉलिक्यूल भी है, ये आयंस भी है, ये भी आयन है और ये भी आयन है। एसिडिक प्रॉपर सॉल्यूशन containing this undissociated acidic acid molecule, acidated ions H positive और N plus ion। अगर हम इसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड ऐड करते, फॉर एग्जांपल HCl, HCl लिपेट करता है H पॉजिटिव आयन, H पॉजिटिव आयन लिपेट करने से pH क्या होगा, चेंज होगा। जैसे हमने HCl ऐड किया स्ट्रॉन्ग एसिड H पॉजिटिव, इसमें मोर नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयन विल बी एडेड, pH में चेंज, pH में डिक्रीज। बट इट इज नॉट सो हैपन बिकॉज जैसे ये H प्लस रिलीज होगा सॉल्यूशन में, ये H प्लस क्या होगा, एसिटेट आयन जो बफर सॉल्यूशन में ऑलरेडी है उसके साथ रिएक्ट करके ये अनडिसोसिएटेड एसिटिक एसिड मॉलिक्यूल फॉर्म करेगा एंड ऑल द फ्री H पॉजिटिव आयन इन द सॉल्यूशन विल बी न्यूट्रल, वो न्यूट्रल कर देगा, H पॉजिटिव को न्यूट्रल कर देगा। सिमिलरली अगर हम इसमें स्ट्रॉन्ग बेस ऐड करते हैं, फॉर एग्जांपल NaOH, NaOH का आयनाइजेशन भी कंप्लीट होता है क्योंकि स्ट्रॉन्ग है ये। जैसे हमने NaOH ऐड किया, मोर नंबर ऑफ OH माइनस आयन विल बी एडेड, pH में चेंज, pH में इंक्रीज, बट इट इज नॉट सो हैपन बिकॉज दिस OH माइनस ion react with the acetic acid undissociated acidic acid molecule and it will form CH3CO minus plus H2O, and in this manner all the OH negative ions get neutral from the solution and hence pH does not change। तो ये बफर एक्शन मैकेनिज्म में हमें ये दो रिएक्शन देखिए आपको एक्सप्लेन करना है। दूसरा बेसिक बफर। अब बेसिक बफर कैसे बनता है? बेसिक बफर सॉल्यूशन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग weak base like ammonium hydroxide and its salt of strong acid NH4Cl। तो इसमें NH4OH जो होता है इस ये वीक बेस है, इसीलिए इसका आयनाइजेशन बहुत कम होता है, NH4 प्लस प्लस OH माइनस। लेकिन अमोनियम क्लोराइड का सॉल्ट का जो आयनाइजेशन है ये मैक्सिमम होता है, that will be NH4 plus plus Cl minus। So again this buffer solution containing this much undissociated molecular ions, यानी ये बेसिक बफर सॉल्यूशन में हम अनडिसोसिएटेड अमोनियम हाइड्रोक्साइड मॉलिक्यूल बनाएंगे, NH4 प्लस आयंस बनाएंगे, OH माइनस बनाएंगे, Cl माइनस बनाएंगे। जैसे हमने स्ट्रॉन्ग एसिड ऐड किया इसमें, अगेन दिस H पॉजिटिव आयन न्यूट्रलाइज बाय रिएक्टिंग विद, अब इसमें कौन सा आयन है वो रिस्पॉन्सिबल बने रहेंगे रिएक्ट करने के लिए। तो यहाँ पे जैसे H प्लस आयन ऐड हो जाएंगे, एसिड ऐड करने से ये H प्लस आयन अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो अनडिसोसिएटेड फॉर्म में अवेलेबल है उसके साथ रिएक्ट होकर NH4 प्लस H2 फॉर्म करेगा और इस तरह से H पॉजिटिव आयन को न्यूट्रल करेगा। लेकिन जैसे स्ट्रॉन्ग बेस हम ऐड करेंगे तो इसमें OH माइनस आयन ऐड हो जाएगा, ये OH माइनस कैसे न्यूट्रल होंगे, बाय रिएक्टिंग विद NH4 प्लस आयन व्हिच इज प्रेजेंट इन द बफर सॉल्यूशन एंड इट विल फॉर्म अनडिसोसिएटेड NH4। तो इस तरह से ये न्यूट्रल करेगा, H प्लस और OH माइनस जो ऐड कर रहे हैं स्ट्रॉन्ग बेस से न्यूट्रल करेगा और न्यूट्रल करने के प्रोसेस में there will be no H plus and OH minus remains for a longer time in the buffer solution and hence the pH does not change। ये उसका बफर एक्शन मैकेनिज्म है। अब इस पर प्रॉब्लम पूछ सकते हैं आपको एक थोड़ा सा प्रॉब्लम से पहले हम इसकी एप्लीकेशन देख लेते हैं। तो बफर सॉल्यूशन के एप्लीकेशंस बहुत सारे इसमें यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इन बायोकेमिस्ट्री है, बायोकेमिकल सिस्टम है, इंडस्ट्रीज़ में, मेडिसिन में, फार्मास्यूटिकल में, एनालिटिकल केमिस्ट्री में। So many food materials, medicines are preserved by using this buffer solution. So many reactions can be controlled by using this buffer solution। बहुत सारे reactions को में pH मेंटेन करना पड़ता है।
तो पीएच मेंटेन करने के लिए हमें बफर सॉल्यूशन का यूज़ करना पड़ता है। अगर एसिडिक लेवल रेंज में पीएच मेंटेन करना है तो हर एक पीएच के आपको बफर सॉल्यूशन मिलेंगे। वो बफर सॉल्यूशन अगर हम यूज़ करते हैं तो जिस रिएक्शन में जितना पीएच चाहिए हम वो पीएच मेंटेन कर सकते हैं। ये कुछ इसके एप्लीकेशन है। अब इसके बाद में इसी पे बेसिक प्रॉब्लम यूज बाय यूजिंग हेंडरसन इक्वेशन। जो बफर सॉल्यूशन का पीएच मेजर करने के लिए फार्मूला है वो फार्मूला है हेंडरसन इक्वेशन। हेंडरसन इक्वेशन। अगर हमें एसिडिक बफर का पीएच मेजर करना है तो हम कौन सा फार्मूला यूज करते हैं? pH इज इक्वल टू pKa प्लस log टू द बेस 10 ऑफ concentration of salt upon concentration of acid। ये फार्मूला यूज करते हैं। अगर हमें बेसिक बफर का pH कैलकुलेट करना है तो हम यहाँ पर ये फार्मूला यूज करेंगे। pH पहले निकालेंगे pKb प्लस log to the base 10 of concentration of salt upon concentration of base। ये फार्मूला हम यूज़ करेंगे। इसी फार्मूले पे बेस्ड प्रॉब्लम दिया आपको, मैं ये प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे। पहला प्रॉब्लम है इसमें इस टाइप का न्यूमेरिकल रहेगा आपका। एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते जाओ। कैलकुलेट द pH of buffer solution containing 0.05 mole sodium chloride per liter and 0.05 mole हाइड्रोक्लोरिक एसिड पर लीटर। इसमें आपको K दिया है, K इज इक्वल टू 7.2 इंटू 10⁻⁻⁴। अब हमें ये कौन सा सॉल्यूशन है? इसमें बफर सॉल्यूशन है, ये एसिडिक बफर है, सोडियम क्लोराइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये एसिडिक बफर है क्योंकि के दिया है, ये दिया मतलब एसिडिक बफर है। एसिडिक बफर का पीएच निकालना हमको। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे आपको दिया क्या है? के इज इक्वल टू 7.2 इंटू 10⁻⁻⁴। तो के एसिड के लिए दिया होता है, मतलब ये एसिडिक बफर है। दूसरा आपको कॉन्सेंट्रेशन ऑफ साल्ट दिया है, साल्ट का कॉन्सेंट्रेशन दिया है और साल्ट का कॉन्सेंट्रेशन कितना दिया है आपको? 0.05। साल्ट का कॉन्सेंट्रेशन दिया है 0.05। हाँ, 0.015। साल्ट का कॉन्सेंट्रेशन इतना है और इसमें एसिड का कॉन्सेंट्रेशन 0.015। तो हमने कैसे कैलकुलेट किया? NaF जो है इट इज द salt of strong base and weak acid। तो इसमें अगर हम इसका ये देखते हैं, इसमें आपको क्या मिला है? HF मिला है। मतलब अगर इसका हाइड्रोलिसिस करते हैं HF प्लस NaOH, ये साल्ट का कॉन्सेंट्रेशन दिया है
और उसमें एसिड का कॉन्सेंट्रेशन दिया है। तो जब कभी Ka या Kb वैल्यू दी होती है, इस पर से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। Ka दिया है मतलब ये एसिडिक बफर पीएच निकालना है, Kb दिया है मतलब आपको बेसिक बफर का पीएच निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, K पर से Pk निकालेंगे। Pka will be equal to minus log K, that is equal to minus log 7.2 into 10 raised to the minus 4। ये हो जाएगा माइनस लॉग 7.2 माइनस माइनस प्लस 4 इंटू लॉग टू द 10। ये माइनस 7.2 का लॉग है, 7.2 का लॉग है 0.8573 प्लस 4 इंटू लॉग 10 1 हो गया, 1 इंटू 4 4। अब ये 4 में से माइनस करो तो ये आंसर आएगा 3.1427। ये आपको मिल गया Pk। अब Pk मिलने के बाद हम pH फाइंड आउट करेंगे। pH इज इक्वल टू Pka प्लस log to the base 10 of concentration of salt upon concentration of acid। आपको दिया है तो Pk कितना आया 3.1427 प्लस log to the base 10 of salt का concentration दिया 0.05 और इसका दिया 0.015 तो 3.1427 प्लस log 3.33। इसको सॉल्व कर लिया पहले हमने। अब 3.1427 प्लस 3.33 का लॉग है 0.5224 एंड फाइनली इसमें से ये सब्सट्रैक्ट करो, आपको मिलेगा 3.665। ये हो गया। ये इसको राउंडिंग आप भी कर सकते हो, 3.67 कर सकते हो। ये बात से जबड़ी वाली तो राउंडिंग आप भी इतना कर सकते हैं इसको। सो दिस इज द टॉपिक दैट वी थॉट इन दिस वीडियो। थैंक यू।